हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हियर द ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड is a pair of ovaries, a pair of oviduct or fallopian tube, a uterus, cervix, vagina and a pair of mammary gland. Okay, female reproductive system included a pair of ovaries, a pair of oviduct or fallopian tube, a uterus, cervix, vagina and a pair of mammary gland. Okay, अब जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनमें से कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं उसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी होगा। क्या होगा? ओवरी। और इसे प्राइमरी क्यों बोलेंगे? बिकॉज ओवरीज प्रोड्यूस गैमेट। Which type of gamete? Female gamete. Due to this reason, ovaries are known as primary sex organ. Primary sex organ. In male reproductive system, primary male sex organ is testis, and in female reproductive system, primary female sex organ is ovary, because ovary produce female gamete and female gamete is known as ovum or egg. Clear है? The second is a pair of oviduct or fallopian tube. Third is a single uterus or womb and cervix, vagina and a pair of mammary gland. इन सब के मिलने से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। This is the structure of female reproductive system. Okay, and we know female reproductive system consists of a pair of ovaries. These are a pair of ovaries. This is the diagram of ovary. First of all, female reproductive system located in pelvic region. कहाँ located होता है? Pelvic region में. Okay, and this all parts are located in pelvic region. So ovary, in case of female reproductive system, a pair of ovaries present, means two ovaries present. One ovary attached with left side and another one is attached with right side of uterus. Clear है? तो ये हो गया ovary. This structure is known as uterus. ये क्या है? यूटेरस। एंड यूटेरस के बीच में ये स्पेस बच रहा है, इसे हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी। ओके, फीटस जो है इसी यूटेराइन कैविटी में ग्रो करता है। अब ओवरी हो गया, यहाँ पे यूटेराइन कैविटी हो गया, ये जो है ये यूटेरस है ना।
तो ओवरी के बाद पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, a pair of ovary, one ovary, two ovary, so a pair of ovary, and a pair of oviduct. First oviduct, second oviduct. Oviduct is also known as fallopian tube. So we discuss about the oviduct. Oviduct or fallopian tube consists of three parts. First part is known as infundibulum. ये इनफंडीबुलम जाके ओपन होता है इससे थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट में. मिस इनफंडीबुलम इज ओपन इनटू अ वाइडर पार्ट नोन एज एम्पुला. ठीक है. फिर एम्पुला फर्दर ओपन होता है नैरोअर पार्ट में जिसका की नाम है इस्थमस. सो फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: narrow infundibulum, wider ampulla and narrow isthmus. These parts form fallopian tube or oviduct. क्लियर है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना. This finger-like structure arises from infundibulum, and this structure is known as fimbriae. Okay, हमने डिस्कस कर लिया ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन कैविटी. अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेम इधर भी वैसा ही होगा. ये भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है. एंड फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. कौन कौन से? तो इनफंडीबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस. क्लियर है हमारा. दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस. यूटेरस इज सराउंडेड बाय थ्री लेयर. आउटर लेयर इज थिन एंड नोन एज पेरीमेट्रियम. ओके. A middle layer, this layer is middle layer. Middle layer is thick. आप देख रहे हो middle layer कैसा है, thick है. And thick middle layer is known as myometrium. And the inner layer is glandular. Inner layer is glandular and known as endometrium. Clear है. Uterus is covered by three wall. Perimetrium, outer one is perimetrium. Just below the perimetrium, a membranous myometrium is present, and just below the myometrium, endometrium is present. अब आप देखोगे ये है यूटेराइन कैविटी. यूटेराइन कैविटी लीड करता है, किसमें लीड करता है? सर्विक्स में. And then this structure is known as cervical canal. Okay, and just below it vagina is present. Just below it vagina is present, and this bulging structure is known as uterine fundus. Uterine fundus. So this is the structure of female reproductive system. Female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of fallopian tube. Fallopian tube is made up of infundibulum, ampulla, isthmus, in which infundibulum and isthmus is narrower than ampulla. Okay, ampulla is a wider structure of fallopian tube. At the end of infundibulum, a finger-like structure is formed, and this finger-like structure is called fimbriae. Next, infundibulum यहाँ पे fallopian tube लीड करके आके किस में मिल रहा है? यूटेरस में. fallopian tube आके किस में मिल रहा है? यूटेरस में. This is the structure of uterine cavity. Okay, अब देख रहे हो आप यूटेरस is covered by three layer. Perimetrium. Perimetrium is a thin membranous layer. Myometrium is a thick membranous layer, and endometrium is a glandular layer. Just below the uterus, cervix is present,
and just below the cervix cervical canal is present and just below it vagina is present. So this is the structure of female reproductive system. बट इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मैमरी ग्लैंड. ओके, तो यहाँ पे मैमरी ग्लैंड को इसके साथ मैमरी ग्लैंड नहीं आता है, बट फंक्शन जो है वो इससे रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे अब हम इसका यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं. ओवरी जो है ये ओवरी पेयर में प्रेजेंट होता है, ये तो क्लियर है. अब बोला जाता है कि ड्यूरिंग each menstrual cycle one ovary produce one ova. मीन्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवरी जो है एक ओवा प्रोड्यूस करता है. जनरली ट्यून्स के केस की बातें अलग होती हैं. वन ओवरी प्रोड्यूस वन ओवा. क्लियर है. तो यहाँ पे तो दो ओवरी है, तो एक और दोनों ओवरी एक एक ओवा प्रोड्यूस करेगा क्या? ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा. नहीं, ऑल्टरनेट मैनर में ओवरी जो है वो ओवा प्रोड्यूस करती है. जैसे मान लो अगर जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में अगर इस ओवरी ने ओवा प्रोड्यूस किया तो फरवरी में ये करेगा. इस तरह से ऑल्टरनेट मैनर में एक मंथ में एक ही ओवरी ओवा प्रोड्यूस करेगी. क्लियर है. तो ओवा मीन्स ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. The process is known as ovulation. ओके, जब ओवरी ने ओवा प्रोड्यूस किया तो यहाँ इस ओवा को ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक एज ऑफ इनफंडिबुलम उसने कैच कर लिया. क्लियर है. और कैच करके फिम्बरी ने कैच करके कहाँ इसीलिए या कहाँ पहुंचाया? फैलोपियन ट्यूब में. फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है? ये इनफंडिबुलम. ओके, ओवा के बारे में हम जानते हैं कि ओवा जो है वो फीमेल गैमेट है. फीमेल गैमेट इज हेयर नन मोटाइल. सो नन मोटाइल फीमेल गैमेट को पहुंचना है एम्पुला में, तो वो खुद से तो नहीं जाएगी, मोटिलिटी की एबिलिटी तो उसमें नहीं है. फिर वो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला तक कैसे पहुंचेगा? तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब सीलिया आर प्रेजेंट. सीलिया लगे होते हैं और ये सीलिया जो है उसे मूव करा के कहाँ ले जाता है? एम्पुला में, एम्पुलरी रीजन में. क्लियर है. फिर से ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी एंड ओवम जिसको ओवरी ने प्रोड्यूस किया उसे कहाँ आना है? फैलोपियन ट्यूब में. कैसे? तो फैलोपियन ट्यूब का जो एज होता है उसे हम बोलते हैं फिम्बरी. फिम्बरी कैचेस द ओवा एंड ये इसे कहाँ ला के छोड़ देता है? फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम पार्ट में. इनफंडिबुलम से ये जो ओवा है ये कहाँ पहुंच गई? एम्पुला में. क्लियर है कॉन्सेप्ट. अब एम्पुला में ओवा जाके वहीं रुक जाती है, उससे आगे ओवा मूव नहीं करते और वो खुद से मूव नहीं करते, उसे कौन मूव कराता है? सीलिया. सीलिया इज प्रेजेंट इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पर्म. मीन्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. तो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमन कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फीमेल बॉडी में जाके और फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है. क्लियर है. तो यहाँ भी मेल गैमेट जो है उसका ट्रांसफर होगा कहाँ? फीमेल गैमेट और फीमेल बॉडी में, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मोर एप्रोप्रिएटली. तो अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा हम यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो बोला जाता है कि मेल गैमेट इज ट्रांसफर into the vagina part of female reproductive organ by the process of insemination. Insemination means gamete transfer. क्लियर है. मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थ्रू मेल गैमेट का ट्रांसफर कहाँ हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में. फीमेल रिप्रोडक्टिव किस पार्ट में? वजाइना में. ओके, वजाइना से ये जो स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म मीन्स हाई लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं.
तो स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ वो स्पर्म वजाइना, वजाइना टू सर्वाइकल कैनाल, देन सर्विक्स, देन यूटेराइन कैविटी, एंड यूटेराइन कैविटी के बाद ये कहाँ पहुंचा, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच के कहाँ आ गया, इस्थमस में, और इस्थमस में आने के बाद ये भी आ गया एम्पुला में। क्लियर है, ये मेल गैमेट का पाथ है। आफ्टर इंसेमिनेशन मेल गैमेट गोज टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट बाय दिस पाथ। क्या पाथ है, वजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूटेराइन कैविटी, और यूटेराइन कैविटी होते हुए ये कहाँ आया, तो ये आया फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में किस पार्ट में आया, इस्थमस, देन एम्पुला, और एम्पुला में ही कौन प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट। हेयर मेल गैमेट फर्टिलाइजेस फीमेल गैमेट, मींस फर्टिलाइजेशन एक्चुअली अकर इन एम्पुलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में। कहीं कहीं लिखा रहता है एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला, इस्थमस एंड एम्पुला इसके जंक्शन पे भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन अकर्ड इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। अब सवाल आता है हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्ड, तो हमने यहाँ देखा ये फर्स्टली ओवरी रिलीज्ड ओवम, okay, and this ovum goes inside the fallopian tube and reaches at the ampullary part of fallopian tube, okay। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो मेल गैमेट है ये बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन ट्रांसफर्ड इनसाइड द वेजाइनल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फ्रॉम वेजाइना टू इट गोज टुवर्ड्स द fallopian tube by the path of vagina, cervix, uterus and then isthmus and finally reach at ampulla where female gamete are present, okay। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब आप यहाँ देखोगे ये जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर गए, and the process is known as what, the process is known as fertilization। तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए 3 इवेंट्स होंगे, है ना, पढ़ा है ना। फर्स्ट इवेंट इज व्हाट, तो फर्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। In pre-fertilization event, what occurred? In pre-fertilization event, gametogenesis and gamete transfer occurred। तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब है इन केस ऑफ ह्यूमन मेल गैमेटोजेनेसिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस and the female gametogenesis is known as oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ एंड oogenesis के थ्रू ओवम का प्रोडक्शन हुआ, है ना, ओवम का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ हमने देखा ओवरी प्रोड्यूस ओवम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा, टेस्टिस प्रोड्यूस what, testis produce sperm by the process of spermatogenesis। डिटेल में अभी तक हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis नहीं पढ़ा है, पहले हम यहाँ पे इनके पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। बट हम इतना जानते हैं कि स्पर्म फॉर्म इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ टेस्टिस एंड ओवम फॉर्म inside the ovary of female reproductive organs। So ovary produces ovum and testis produces sperm। ये क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ हमने ये भी देख लिया गैमेट ट्रांसफर एंड हियर गैमेट ट्रांसफर इज नोन एज इंसेमिनेशन। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीटेड।
क्लियर है। अब जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, द नेक्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ कंप्लीट प्रोसेस को ब्रीफ कर रहे हैं, ओके, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो आपने देखा कि गैमेट ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच गया, बोथ गैमेट आर कम्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज किए, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन post fertilization events occurred, post fertilization and post fertilization में क्या होता है, formation of embryo। तो जब यहाँ पे अब फ्यूजन हो गया है तो अब हम इस गैमेट ट्रांसफर को हटा के अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट here zygote is formed. Zygote is formed. Zygote is a single celled structure. Now zygote divide by cleavage process and form two cell. Clear है? ये सब कहाँ हो रहा है, isthmus में, ओके, और isthmus से फिर से ये zygote फर्दर डिवाइड करके 4 सेल का हो गया, 4 सेल से 16 सेल, देन 32 सेल, देन 64 सेल, और हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ये जो डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, क्लीवेज के थ्रू हो रहा है। क्लियर है। और अब यही जाइगोट जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है तो आके यूटेरस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है। किसके साथ अटैच हो जाता है, यूटेराइन वॉल के साथ। क्लियर है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज implantation. Here this process is known as implantation. What is implantation? Attachment of blastocyst with uterine wall is known as implantation. Clear है। और जब ये इम्प्लांट हो जाएगा तो फर्दर डिवाइड करके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, फिटस के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगा और एक कंप्लीट फिटस का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये 9 मंथ ये पूरा का पूरा जो फिटस है वो डेवलप होगा इनसाइड दिस कैविटी एंड दिस कैविटी इज नोन एज यूटेराइन कैविटी। आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट दिस फीटस, ये जो फिटस है वो सर्वाइकल कनाल के थ्रू होते हुए क्या होगा, यहाँ पे पार्चुरेशन ऑफ बेबी होगा, मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी होगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि सर्वाइकल कनाल और वजाइना ये मिलके यहाँ पे बर्थ कनाल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस को समझो जो कि हमने कोशिश किया है समझाने का। हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कंप्लीटेड बाय 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखा तुमने, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis जो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, और गैमेट ट्रांसफर, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाया। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे जाइगोट, फर्दर जाइगोट यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज डिवाइड करके कहाँ पहुंच रहा है, यूटेरस में, यूटेरस के यूटेराइन वॉल के साथ अटैच हो रहा है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। हियर complete development of embryo occurred and all the organ and part of the embryo are formed, and after complete development the embryo are delivered by birth canal, and the process is fetus is delivered by birth canal and the process is known as parturition. Okay, तो इस तरह से यहाँ हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, एंड ओवरी की अगर हम बात करें तो दिस ओवरी इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ओके, ovary is surrounded by
a membrane या encloses by a membrane known as epithelium. मिस किसका बना हुआ है? epithelial tissue का, इसको ovarian epithelium बोलते हैं. And this membrane, this ovarian epithelium surround a structure known as ovarian stroma. Stroma, ये क्या है? Ovarian stroma. This ovarian stroma is divided into two parts. Outer part is known as peripheral cortex. ये जो पेरिफेरल पार्ट है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. एंड द इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला. इनसाइड दिस ओवरी व्हाट इज फॉर्म्ड? ओवम इज फॉर्म्ड. इनसाइड द ओवरी ओवम इज फॉर्म्ड. यहाँ पे बस हम स्ट्रक्चर की बात की हमने. ओवरी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? epithelium layer, and this epithelium layer surrounded stroma. This stroma is divided into two zones. Outer is cortex and inner one is known as medulla. अब next यहाँ हम डिस्कस करेंगे यूटेरस. हमने पढ़ा यूटेरस कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल, है ना. द इनर वॉल इज ग्लैंडुलर and the middle is thick and the outer wall is thin. मिडिल कैसा होगा? थिक होगा. और आउटर कैसा होगा? थिन होगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरीमेट्रियम. Perimetrium is a external thin layer of uterus. This one is the layer of myometrium. Myometrium की अगर बात करते हैं तो myometrium जो है ये मिडिल थिक लेयर है और ये हेल्प करता है किसमें? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है एट द टाइम, और यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. ओके, इट हेल्प्स इन यूटेराइन contraction at the time of delivery of baby, because baby grows inside the uterine cavity and for delivery it goes inside the birth canal. But what is birth canal? Birth canal is the combination of cervical canal and vagina. सर्वाइकल कनाल मीन्स सर्विक्स में जो कैविटी प्रेजेंट होगा उसे हम सर्वाइकल कनाल कहते हैं, और ये सर्वाइकल कनाल वजाइना के साथ मिलके क्या कहलाता है? बर्थ कनाल. पार्चुरेशन प्रोसेस इसी बर्थ कनाल से होता है और वो उसमें उस पार्चुरेशन के लिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का होना जरूरी है, और वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है? मायोमेट्रियम. ये कैसा होता है? ये थिक लेयर है, thick membranous layer. The inner layer is known as endometrium. Endometrium की अगर हम बात कर ले तो endometrium जो है ये भी thin layer होता है और सबसे important है glandular होता है. कैसा होता है? Glandular. Okay? At the time of ये कैसा layer है? Glandular layer है. And it goes cyclic changes during menstrual cycle. Means इसमें cyclic change होता है किसके दौरान? तो menstrual cycle के दौरान. Cyclic changes during menstrual cycle. So हमने यहाँ पे देखा wall of uterus individually पढ़ा. The outer wall of uterus is known as perimetrium. Middle is myometrium. Myometrium helps in uterine contraction, and the inner is glandular and known as endometrium. During menstrual cycle ये जो endometrium है, मिस endometrium wall uterus का, ये यहाँ पे रप्चर हो जाता है. ठीक है, और इसी ये काफ़ी हाईली वेस्कुलर होता है. मिस इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके रप्चर होने से इसके ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे रप्चर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल्स से ब्लड क्या होते हैं? बाहर आते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ब्लीडिंग प्रोसेस होता है. मिस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर, और फिर धीरे धीरे आफ्टर 4 to 5 डेज ये जो रप्चर हुआ था ये फिर से यहाँ पे क्या होने लगता है? तो रीजेनरेट होने लगता है.
क्लियर है, और रीजनरेट होके कंप्लीट एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर ड्यूरिंग नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होगा, फिर से रप्चर होगा, और ये हाईली वेस्कुलर होता है जैसा कि हमने बताया, और हाईली वेस्कुलर होने की वजह से इट कंसिस्ट ऑफ मोर ब्लड वेसल्स, और जब ये रप्चर होगा तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर होंगे और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा लेयर्स ऑफ यूटेरस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यूटेरस जो होता है ये पियर शेप्ड होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आया, पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखना है, यूटेरस आर पियर शेप्ड। कैसा शेप होता है यूटेरस का, पियर शेप। तो इस तरह से यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of fallopian tube, uterus, cervix, vagina, a pair of mammary gland and female external genitalia and female external genitalia. Male reproductive system में भी हमने ऐसा ही पढ़ा था। Male reproductive system consists of a pair of testes, accessory duct, accessory gland and male external genitalia. तो अब हमने यहाँ पे अपना जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स थे उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब बचता है क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Female external genitalia includes some structure like mons pubis, second labia majora, next labia minora, next structure is hymen and clitoris. These structure are included in female external genitalia. अब हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करते हैं। मॉन्स प्यूबिस की अगर हम बात करते हैं तो मॉन्स प्यूबिस जो है ये एक फैटी टिश्यू स्ट्रक्चर है और इस पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मॉन्स प्यूबिस इज अ cushion of fatty tissue, cushion of fatty tissue and covered by pubic hair, covered by skin and pubic hair. The second structure is known as labia majora. Second structure is known as labia majora. तो हम बात कर रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लिबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस हमने पढ़ लिया, क्यूसन ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। Second one is labia majora. Labia majora is a fleshy fold of tissue surround the vaginal opening. ये just below the mons pubis present होता है, extend करता है down from the mons pubis and surround the vaginal opening. Third part is labia minora. Labia minora is a paired fold of tissue and under the labia majora. Fourth is hymen. Hymen is often partially covered opening of vagina. Opening of vagina is also surrounded by labia majora, and inside this hymen is covered the labia opening of vagina. Next one is clitoris. Clitoris is a tiny finger-like structure present at the junction of two labia minora above the urethral opening. क्लाइटोरिस जो है ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये लिविया माइनोरा की जंक्शन पे प्रेजेंट होता है एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग।
क्लियर है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को डिस्कस किया। जैसा कि आप एक बात को ध्यान में रखना कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनका जो डेवलपमेंट होता है इनिशियल स्टेज में सिमिलर होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्लाइटोरिस है ना, यही क्लाइटोरिस यहाँ पे एक टाइनी स्ट्रक्चर है, और मेल के केस में ये डेवलप होके पेनिस की तरह पेनिस हो जाता है। ठीक है, मीन्स बोला जाता है कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट इज एनालॉगस टू ईच अदर। मीन्स इनिशियल स्टेज में दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के थ्रू दौरान क्या होता है कि मेल में कुछ अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और फीमेल में, बट इनिशियल स्टेज जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम ही होता है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया क्लाइटोरिस का, यही क्लाइटोरिस फीमेल में टाइनी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है और मेल में डेवलप होके पेनिस का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हर स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं वैसा ही क्या होगा, जैसे माना जाता है ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये स्क्रोटल सैक की तरह है। क्लियर है। तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इज सिमिलरली डेवलप्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो है मैमरी ग्लैंड। अब हम डिस्कस करेंगे मैमरी ग्लैंड। A pair of mammary gland is associated with female reproductive system. मैमरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। और ये जो मैमरी ग्लैंड है ये बेसिकली बना होता है दो चीजों से। इट कंसिस्ट ऑफ फैट एंड अ टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। Means each mammary gland consists of fat and glandular tissues. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा in female reproductive system a pair of mammary gland is present. Each mammary gland is composed of fat and glandular tissue. अब बोला जाता है कि this glandular tissue consists of 50 to 20 mammary lobes. ये जो glandular tissue है ये क्या बनाते हैं, तो each breast में ये 50 to 20 in each breast it consists of 50 to 20 mammary lobes. फिर से a pair of mammary gland is present in female reproductive system. Each mammary gland present in each breast. Means one mammary gland present in one breast. तो यहाँ पे बोला गया mammary gland is basically composed of fat and glandular tissue. Okay. This glandular tissue in each breast form 15 to 20 mammary lobes, and these mammary lobes are consisting a cluster of cells called alveoli. Alveoli. Alveoli are cluster of cells, group of cells. This alveoli secrete milk and store milk in their lumen. This alveoli secrete milk and store milk. क्लियर है। मैमरी ग्लैंड
present in each breast, and this mammary gland is mainly composed of fat and glandular tissue, and in each breast this glandular tissue of mammary gland form 15 to 20 mammary lobes. These mammary lobes are consisting a cluster of cells called alveoli. This alveoli secrete and store milk. क्लियर है? इसके बाद आप देखोगे ये जो alveoli है ये ओपन होता है mammary tubules में. Alveoli open into mammary tubules. Alveoli open into mammary tubules, and many mammary tubules combined and form what? तो mammary duct. Mammary duct. Each lobe of mammary tubule combined join to form mammary duct. Clear है? And mammary duct, several mammary duct join to form a wider mammary ampulla. Several mammary duct join to form mammary ampulla. फिर से mammary gland in female reproductive system in human consists of a pair of mammary gland. Okay, each breast in each breast one mammary gland is present. This mammary gland is composed of fat and glandular tissue. This glandular tissue in each breast form 15 to 20 mammary lobes. These mammary lobes combined consist of a cluster of cell called alveoli. Actually this alveoli secrete and store milk. This alveoli open into mammary tubule. Many mammary tubule join to form mammary duct, and a wider mammary duct join to form many mammary duct join to form mammary ampulla, and finally mammary ampulla open into lactiferous duct, and milk is sucked by this lactiferous duct. तो हम इसे अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखते हैं तो ये ज़्यादा ध्यान में रहेगा. तो हमें ध्यान में रखना है फर्स्टली mammary lobe, then alveoli, then mammary tubules, then mammary duct, mammary ampulla, and finally lactiferous duct. Lactiferous duct through which milk is sucked out. इसी duct के थ्रू क्या होता है? milk जो है वो sucked out होता है. तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है आपको. क्या? mammary lobe, alveoli, mammary tubule, mammary duct, mammary ampulla and lactiferous duct. तो इस तरह से आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और देन गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे.